Hello everyone in the Ansakari. Hello everyone in the Ansakari. And today we are going to study about the fundamental duties. Uh, because in the earlier classes we have covered the fundamental rights along with the directive principles of the state policies. So about the fundamental duties. So fundamental duties are those principles or those responsibilities we can understand which every citizen should follow because he deserves that when he's enjoying the rights given by the state, given by the constitution, so he should perform some sort of responsibility. And to accommodate that all such responsibilities, we have a chapter of fundamental duties in part 4a that provides the 11 types of fundamental duties to each and every citizen of India. Now, these are the key terms we can look that they promote social cohesiveness and nut and bolts on which the civilizations have flourished. If we talk about the ancient times, historical times, then also we have various phases where the citizenship and where the responsibilities have been talked out in detail. When we talk about Aristotle, when we talk about Hannah Arendt, who clearly mentions that what is the meaning of citizenship? The meaning of citizenship is that before you enjoy your rights, you must have to perform your duties. And from there onwards, the foundation of fundamental duties started taking place. And in the contemporary, we have the fundamental duties in the tangible form in various forms of constitutions across the world. As far as the Indian fundamental duties chapter is concerned, we will look out that how it got incorporated in the Indian constitution because earlier, before 1976, it was not the part of original constitution and it was later on added after the emergency and we can say that post-emergency phase. United Universal Declaration of Human Rights, which provides the sanctions behind the fundamental rights, which are in the part third of Constitution, they also give some light on the duties itself when they say that it is the responsibility and it is a duty of the global world to deal with the human rights, to deal with every right which is derived from the category of the human rights. So you can Universal Declaration of Human Rights not only provide the fundamental rights sanction but also the fundamental duties. Then this is the chronology that how we incorporated the fundamental duties in our constitution. So in 1976 we have a famous parliamentarian. His name is Sardar Swaran Singh. He was made the head of a committee to examine what is the importance of duties, whether they should be incorporated in the constitution, what principles should they be provided the insignia or the status of constitution, should they be enforceable, non-enforceable, justiciable or not. So this committee talked in detail about every notion and it provided a detailed report in which it mentioned number of duties in which we have these duties which will be looking. These are the current part of fundamental duties. So in 1976, a new chapter was introduced in the Indian Constitution in part 4A that provides fundamental duties. And the Constitution was amended again in the 42nd by the 42nd Constitutional Amendment Act, where the part 4 was amended and 4A was added on where the fundamental duties we currently have. And only one article for these duties, that is Article 51A. They provide earlier in the 1976, we had only 10 fundamental duties. But as we talked in the fundamental rights chapter, that in the 86th Amendment 2002, which talks about the elementary education till the 14th year of age, that also mentioned one elementary education component here in the DPSP, that is the 11th fundamental duties, where it shall be the duty to provide opportunities for education to our children between age to 14 years. So this is the fundamental duties that is added on by 86th Amendment Act 2002. Now one by one we are looking what are the 10 common duties. Number one,
We have to abide the constitution, respect flag and anthem. आपको कहीं भी अगर आपका फ्लैग गिरा हुआ दिखता है तो आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए. If we talk the comparison between US and Indian flag, so the difference is US is considered as the extreme form of democracy. Why? Because if you unfurl their flag, if you stand on their flag in the front of Washington DC, even then the police cannot arrest you. But in India, if you do so, though you cannot be taken by police on solely on the basis of this fundamental duty, because this is non-enforceable, non-justiciable. But we have a law which is made by the Parliament of India regarding the protection of national flag and national anthem. So in the case you do that, you'll be booked, and that will be a non-cognizable offense. Cognizable offense. Number two, you have to cherish and follow the noble ideals जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर देखे गए. आप कहीं भी पब्लिक में ये खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं कि गांधी was not right in adopting this strategy which led to the failure of Indian state. You can't say this. You have to always cherish and follow the noble idea, provided you can also do the positive criticism as you are allowed in the judiciary. Number third, you have to ensure and protect the sovereignty, unity and integrity of India, not only by individually but also by cooperation with the administrative and with the executive agencies. When the defense forces are passing on, you have to provide them free space. You have to give them respect because they are the main tool which is providing you integrity, sovereignty, and similar for the police in terms of unity. Fourth, to defend the country in any terms. In normal terms, you have to perform your responsibility as a civilian. But in the case of emergency, you can be assigned the task of non-civilian to protect your country. Then fifth, spirit of common brotherhood amongst all people of India. You have to ensure that you do not do any sort of discriminatory activities or act with your companion, whether it is in school, college, university, working space, anywhere. You have to ensure, sorry, you have to ensure that you maintain the brotherhood and the feeling of. तो जितने भी अलग अलग टाइप की इज्म है, लिंग्विज्म है, रिलीजियज्म है, कॉम्युनलिज्म है, उन सबसे ऊपर उठने की बात इस आर्टिकल के अंदर की जाती है कॉमन ब्रदरहुड. रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर. हमारा कॉम्पोजिट कल्चर जो कि डाइवर्सिटी को बताता है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग ट्रेडिशन, कल्चर, ट्राइब सबका बताता है. आपको उसको हेरिटेज को रिच करना है, आप उसको और बढ़ावा देना, उसको प्रिजर्व करना है, आप उसको भूलना नहीं है. मॉडर्निटी के साथ उसके भी कंपोनेंट को आपको लेकर चलना है ताकि वो लुप्त ना हो. देन साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. वी हैव द लीडरशिप and the famous examples of institutions which are leading this. Example, DRDO, ISRO, NAC, UGC. लेकिन इंडिविजुअली भी आपको साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करना चाहिए अपने अंदर. आपको रैंडमली जो आपके थॉट्स हैं उनके बिहाफ पे कहीं भी नहीं बोलना चाहिए. आपको आपके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए आपकी बात रखने का, आपको जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपकी बात का. देन सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हर्ट नहीं कर सकते हैं. जब हम देखते हैं यूपी और दिल्ली का एग्जांपल जहां पर राइट्स हुए थे और पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा गया था, 1 crore इज द लमसम अमाउंट व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन कल्प्रिट्स. तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है और इसके ऊपर कानून बना हुआ है, इसलिए आपको पुलिस पकड़ सकती है. अगर इसके ऊपर कानून नहीं बना हो तो भी आप सेफगार्ड नहीं भी करें तो भी चलता है. Strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activity. यानी आप जो अपना काम कर रहे हैं उसमें तो एक्सीलेंस लाइए, लेकिन जो आप कलेक्टिव काम भी करते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल हमारा ग्रुप भी है, उसमें भी आप एक्सीलेंस को बढ़ावा दीजिए. आप जितने भी वेरियस टाइप ऑफ इज्म्स हैं उनको त्याग करके कलेक्टिव एक्शन की तरफ बढ़िए, क्योंकि आखिरी में बुद्ध ने भी यही कहा है, एरिस्टोटल ने भी यही कहा है, गांधी ने भी यही कहा है कि जो संसार का कल्याण होगा वो कलेक्टिव विजडम है. सबके साथ से विकास हो सकता है, जिसको हमारी करंट गवर्नमेंट भी कहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. हु इज अ पेरेंट और अ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी. तो इसकी हमने बात की 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002, जिसने यहाँ पर भी एजुकेशन की बात करी ड्यूटीज में कि हर माता पिता की जिम्मेदारी है
कि अपने बच्चे को 6 से 14 साल की जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है वो दिलवाए, ताकि उसका विकास हो सके, उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट हो सके सोसाइटी के अंदर। जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इल्स है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्राइम्स है, जिनके अंदर इलिटरेसी की वजह से बच्चा पड़ जाता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी नहीं हो पाती है, इन सारी चीजों के परे होकर आप जो है सोसाइटी में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दें। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ओरिजिनली हमारे यहाँ पे 10 थी, लेकिन 11 हुई, जिसको हमने अभी देखा। इसके बाद है कि स्वर्ण सिंह जी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको कहाँ से इंस्पायर होकर लिया। तो जो हमारा रशिया है, जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड भी माना जाता है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्या केवल सरदार स्वर्ण सिंह जी ने इतनी ही रिकमेंडेशन दी थी? ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत सारी अलग रिकमेंडेशन भी दी थी, जिसके अंदर से दो इंपॉर्टेंट क्या है। पहला, उन्होंने कहा कि जो वोटिंग राइट है, आप उसको राइट के साथ ड्यूटी बना दीजिए। यानी वोटिंग देना आपका अधिकार तो है, लेकिन ड्यूटी भी है। अगर आप नहीं देंगे तो दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरा, टैक्स अगर आप देते हैं तो ये ड्यूटी होनी चाहिए हर इंसान की कि फंड वो टैक्स दे। तो टैक्स को भी उन्होंने बोला। लेकिन द नेसेंट स्टेज ऑफ इंडिया इन इट्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस and the large scale population, which is highly difficult to accommodate amidst the large diversity, illiteracy, poverty, hunger, malnutrition, such kind of recommendations were not considered by the government of India. And though all the recommendations were accepted, but these 2 and 3 were not accepted. Now, what are the features of fundamental duties? तो ये मोरल भी है, सिविक भी है। मोरल है जैसे कि आपको अपने फ्लैग के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, आपको जो अपने फ्रीडम फाइटर्स है उनकी बातों को बढ़ावा देना चाहिए, ये मोरल ड्यूटीज है। सिविक ड्यूटीज है, आपको ब्रदरहुड बनाना चाहिए, आपको कलेक्टिव काम करना चाहिए, आपको साइंटिफिक इंक्वायरी करनी चाहिए। उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेडिशनल और हेरिटेज की वैल्यूज है उनको बढ़ावा दिया है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज कहती हैं कि आपको अपना ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना है, तो उस ट्रेडिशन के अंदर आपका धर्म भी आ गया, आपके त्योहार भी आ गए, आपके रीति रिवाज भी आ गए। तो कहीं ना कहीं उसने कोडिफिकेशन करने का काम किया है जो हमारे सेग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ ट्रेडिशंस एंड रिलीजन। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 29, 30 सिर्फ सिटीजन के लिए है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज में सिर्फ ये कहा गया है कि भाई सिर्फ सिटीजन ही फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करेंगे, नॉन सिटीजन नहीं करेंगे। फॉरेनर जो आएंगे, टूरिस्ट, आप उनको ये नहीं बोलोगे आप फंडामेंटल ड्यूटीज अपनाओ। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह ये ना तो जस्टिशिएबल है, ना ही एनफोर्सिएबल है, प्रोवाइडेड अ लीगल लॉ इज मेड अंडर द परव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट ऑन इट। देन यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनका कंप्लीशन का टारगेट 2030 है, वो बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि किस तरीके से जो ग्लोबल चैलेंजेस है, पॉवर्टी से लेकर एनवायरमेंट कंजर्वेशन तक, किस तरीके से उसमें कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं ना कहीं उसी को बढ़ावा देती है। जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज ये बात कहती है कि आपको कोई डिरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं देनी है वुमेन के लिए, दलित के लिए, वल्नरेबल्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी को बढ़ाती है। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम उसे कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन मेकिंग एज पर द टाइम, आज के कॉन्टेम्प्रेरी जो चैलेंजेस है वो भी फंडामेंटल ड्यूटी से जोड़ कर देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से आर्टिकल 21 में एलजीबीटीक्यू के राइट्स आते हैं, उसी तरीके से आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट और एलजीबीटीक्यू के राइट भी आते हैं। डिजिटल सिटीजनशिप, as we all know that we are living under the digital world, so digital citizenship is also getting derived from the fundamental duty. जब हम बात करते हैं हेट स्पीच की, मिस इन्फॉर्मेशन की, डिस इन्फॉर्मेशन की, तो वो भी कहीं ना कहीं
साइंटिफिक टेम्पर जो हम डेवलप करने की बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी में, वो उसको मिनिमाइज करने की बात करता है, इन तरीके की चीजों को। Then duty to vote in election was considered as a duty but not considered by the government of India. So we have a famous committee, that is Verma Committee on the fundamental duties. तो वर्मा कमेटी ने स्टडी किया फंडामेंटल ड्यूटीज को, और उन्होंने बताया कि क्या क्या लीगल प्रोविजंस अवेलेबल हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। तो पहला, जब हमने बात करी नेशनल फ्लैग, तो उसके ऊपर हमारा एक्ट है पार्लियामेंट का 1971 में, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, जो कि डिसरेस्पेक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन की, फ्लैग की, एंथम की मना करता है, और आपको जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आईपीसी है उसके अंडर बुक भी किया जाता है। जब हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग की, तो हमारे यहाँ पे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी है, जिसके अंदर लीगल एंड सिविक प्रोविजंस हैं कि किस तरीके से नेशनल फ्लैग को देख रेख उसकी की जाएगी। जो डिफेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, किस तरीके से वो भी नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अपनाएंगे। आम जनता तो अपनाएगी, किस तरीके से जो बाहर के इंटरनेशनल डिप्लोमेट आते हैं, उनकी गाड़ियों पर नेशनल फ्लैग कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कब उतारा जाएगा, कब लगाया जाएगा, ये सारी प्रोविजंस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर है। एंड दिस वाज अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम आल्सो। देन वेरियस क्रिमिनल लॉज है हमारे यहाँ पे। जब आप बात करते हैं कि आप दो कम्युनिटीज के बीच में एनमिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, धर्म के नाम पर हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जैसी जो गतिविधियां हैं वो भी कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमारे यहाँ रेगुलेट है, और उनके ऊपर भी आपको जो है बुक किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो पनिश करता है जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कास्ट और रिलीजन के नाम पे, 1951। इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट फॉर SC ST भी है। आईपीसी के अंदर भी इन सारी चीजों की बात की गई है। UAPA, ताकि कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस अनलॉफुल एक्टिविटीज ना करें। RP एक्ट 1951 है हमारे यहाँ पर, जो बात करता है कि किस तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है हमारे पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो within the premises of the parliament and the legislature do not promote such kind of nuances on the basis of caste, race, language and religion which leads to discrimination in the society। और एनवायरमेंट जब हम बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसके अलावा भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, तो अलग अलग हमारे यहाँ पर एक्ट भी। देन द एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, so they are not enforceable and not binding provided a legal law is not made by the parliament. So if it is made, then it will be enforceable and justiciable also, provided you have to go to the district court, session court, high court, supreme court in this chronology, unlike the fundamental rights where you can directly approach the supreme court under article 32 and high court under article 226। यूनिक ब्लैंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। सो राइट्स जब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की हैना एरेंट की, जो बात करते हैं कि किस तरीके से जो सिटीजनशिप है वो ही बेस करती है ड्यूटीज पर, तो ड्यूटी की ज्यादा प्राइमेसी होनी चाहिए बकायदा राइट्स। जो स्टेट का फॉर्मेशन है वो इसीलिए हुआ है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, लेकिन अपने कुछ अधिकार त्याग दीजिए किसी थर्ड पावर को, ताकि वो आपको गवर्न कर सके, और वो जो आपको ड्यूटी देगा उनका आप निर्वाह कीजिए। प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आज के टाइम पर, वो हर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं उनका पार्ट है। हर स्कूल के करिकुलम में प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर दिया जाता है, ताकि इंस्टिल किया जाए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द कंट्री। और वहीं से जब हम बात करते हैं बिहेवियरल रिवोल्यूशन की, तो चिल्ड्रन आर द प्राइम कंसर्न हु लीड्स द बिहेवियरल रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी। वी हैव टू प्रोमिनेंट केसेस, केरला हाई कोर्ट वर्सेस एडवोकेट सबू पी जोसेफ एंड ORS। यहां पर बात की गई कि जो पुलिस वाले होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनकी जान माल की हानि ना हो, उसकी वो रक्षा करें, और उनके राइट से भी ऊपर उनकी ये ड्यूटी है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 33, 34 फंडामेंटल राइट, जिसमें पार्लियामेंट कर्टेल कर देती है डिफेंस फोर्सेस के राइट्स, तो कहीं ना कहीं ये उसका को हार्मनी है।
कि यहाँ पर बात हो रही है कि दे आर नॉट द नॉर्मल ऑफिसर्स, दे आर नॉट द नॉर्मल सिटीजन्स, दे हैव द मोरल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल and the administrative responsibility so that the unity, integrity and the noble ideas of the Indian Constitution are continued and remain sustainable. तो इस केस में यही निकल के आया कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, वो उनके राइट से भी ऊपर है। एम्स के जो स्टूडेंट्स थे वर्सेस ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट दिल्ली, यहां पर केस आया कि जो आर्टिकल 51A है, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, कि एनफोर्सिबल नहीं होंगे जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ये ऐसे भी नहीं होंगे जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। यानी अगर हम तीन चीजों में वेटेज देखें तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, दूसरे नंबर पे फंडामेंटल ड्यूटीज और तीसरे नंबर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। सो दिस इज द वेटेज इंडेक्स वी कैन से ऑफ दीज थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर्स। अब बात आती है कि आर्टिकल 51 के अंदर क्या क्या और आ सकता है। तो आपके अंदर आर्टिकल 51 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बार बार कहा है कि एनवायरमेंट के भी जो राइट्स हैं वो सिटीजन की ड्यूटी बन जाते हैं। ई फ्लो की जब हम बात करते हैं रिवर्स में, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फोना, एंडेंजर्ड स्पीशीज की जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट में, इकोलॉजी में, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट को मना करने की जब हम बात करते हैं, फॉरेस्ट फायर्स, लैंड हिल्स पर इलीगल कंस्ट्रक्शन, इनकी जब हम बात करते हैं, सारी ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ऐसा बोला गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इतनी जरूरी है कि वो इंडिया के अंदर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करती हैं। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स इनएलिनिएबल हैं, इसी तरीके से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐसी हैं जो इनएलिनिएबल हैं। तो इनका नाम था जस्टिस रमना। एंड द लास्ट थिंग्स वी कैन टेक इन दिस चैप्टर इज दैट फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या क्या क्रिटिसिज्म है। तो ऐसा ही बोला जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आने से जो फंडामेंटल राइट्स है वो सुपरफ्लुअस हो गए हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि जो सरदार स्वर्ण सिंह जी ने कहा था कि टैक्सेशन का भी फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, वोट डालने का भी होना चाहिए, उससे वोटिंग रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, उससे टैक्स बोयंसी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलवेज थ्राइव्ड नॉट ऑन द बेस्ट बट ऑन द बेटर एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन व्हिच कैन बी डन। And the last thing, they are not enforceable, not justiciable, but such kind of definition is misunderstood because they can be legal, legally justifiable and enforceable provided a law is made by the parliament on them. Then we have the prime minister saying, that is the reminding saying regarding the fundamental duties। जब ये बात करते हैं 5 तरीके के पंच प्राण, तो पहला पंच प्राण इन्होंने बात की कि जो यूथ है इंडिया का, उसको सोचना चाहिए, उसको अकम्प्लिश करना चाहिए किस तरीके से हमारा भारत डेवलप हो। दूसरा, हर तरीके के सर्विट्यूड को आप त्याग दीजिए। आप रिमेंबर कीजिए लेगेसी लीडर्स का, जैसे कि बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, चेन्नम्मा, इनके हीरोज एक्टिविटीज एक्शंस का। थर्ड पंच प्राण है कि आपका जो इतिहास है, आपकी जो लीगेसी है, आपकी जो इंडियन नेशनलिज्म की जो नींव है, आप उसको प्रमोट कीजिए, आप उसको याद कीजिए, आप उसको भूलिए मत। आपका जो आपकी जो सामाजिक वैल्यूज हैं, जब हम बात करते हैं टॉलरेंस, जब हम बात करते हैं अकोमोडेशन, टॉलरेंस, अकोमोडेशन, कंपैशन, एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ इंडियंस, जब हम बात करते हैं सभी के सुख और कामना की, तो उन सारी चीजों का भूलिए मत। यही डिफाइन करता है कि इंडिया का कैरेक्टर क्या है और इंडिया के लोगों का कैरेक्टर क्या है। इसके बाद जो चौथा पंच प्राण है वो है यूनिटी, कि आप हर काम को मिलकर के कीजिए। जब हम बात करते हैं यूनिटी, तो इसमें भी जो लड़ाइयां देखी जाती है वो अपनी एग्जिस्टेंस की देखी जाती है, कि हमारी एग्जिस्टेंस कम नहीं होनी चाहिए।
अब स्टेट सेंटर की बात कीजिए, वहां पर जब सेंटर गवर्नमेंट को रिजोल्यूशन देती है कि आप पुलिस रिफॉर्म्स कीजिए, हम आपके मैटर में कानून नहीं बनाना चाहते, लेकिन फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पॉलिटिकल विल नहीं है, और इसी के कारण हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम्स जेल से ऑपरेट होते हैं। ऐसे भी इंसिडेंसेस हैं, एनसीआरबी की आप रिपोर्ट देखें तो उनमें यह पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर हैपनिंग विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द जेल इटसेल्फ। जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हैं, आप उनके हिसाब से देखिए कि किस तरीके से जो जेल प्रेमाइसेस है वहीं पर करप्शन लाइक एक्टिविटीज से क्राइम्स पनपते हैं। जो ट्रायल्स की दिक्कत है वो होती है, और क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है वो हैम्पर होता है, उसकी ग्रोथ हैम्पर होती है, और पेंडेंसी ऑफ केसेस, एंटीसिपेटरी बेल में करप्शन जैसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो जब तक हम इस यूनिटी प्रिंसिपल को कलेक्टिव एक्शन नहीं देखेंगे, अपनी लड़ाई देखेंगे, सबकी लड़ाई नहीं देखेंगे, तो ये जो पंच प्राण हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी जो सर हम देते हैं वो पूरा नहीं हो सकता है। और जो आखिरी पंच प्राण है वो है कि आपको करप्शन निपोटिज्म को त्यागना है। आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इल है इनसे ऊपर उठकर इंडिया को डेवलपमेंट स्टेज पर लेकर जाना है। और उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि आप अपने ड्यूटीज का निर्वाह करें, आप अपने साथी के साथ कोऑपरेट करें, आपको जो काम दिया गया है आप उसे प्रेम पूर्वक करें, और आप हम्बली रह करके कंट्री का डेवलपमेंट में योगदान दें। तो यहीं पर बात की गई है कि क्या क्या आर्टिकुलेट किया जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटी से। तो पहला ये बताती है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, और हमारे साथी सिटीजन्स के लिए। ये वॉर्न करती है सिटीजन्स को कि आप जो काम करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के हिसाब से वो एंटी नेशनल भी हो सकती है, एंटी सोशल भी हो सकती है। ये सोसाइटी के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट की भावना लाते हैं। आप जो डिफेंस एनक्लेव्स है इंडिया के अंदर, आप वहां झंडा जो इंडिया का है आप उसको देखिए कि वो कितने शान और शौकत से लहराया जाता है, उसके कितने कोडिफिकेशंस हैं। लेकिन आप जब एक सिविल लोकेलिटी या फिर सिविल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर देखते हैं तो वहां पर आपको अपना फ्लैग जमीन पर गिरा हुआ भी मिलता है। तो इससे पता लगता है कि डिसिप्लिन की जरूरत कितनी है इंडियन सोसाइटी में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज एक डिसिप्लिन की भावना और कमिटमेंट की भावना को भी बढ़ावा देती है, और इसीलिए ये जरूरी थी, जिसकी वजह से जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन श्री एम वेंकटचाल्या, उन्होंने भी इसको स्टडी किया कि इमरजेंसी के बाद जो आप फंडामेंटल ड्यूटीज लाए क्या वो जरूरी हैं। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, वो बहुत जरूरी है, दे आर द सेक्रेड, एंड सिंस दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आल्सो। So we have one question on the fundamental duties which we have just talked. Which of the following statement is true of the fundamental duties? Number one, a legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlative to legal duties. Select the answer using the code given below. So I would like my friend Oshik to give the answer of this question. इससे पहले वाला लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, को रिलेटिव। Anyone लीगल else? ड्यूटीज नहीं होगा इसमें भी नहीं होगा। I think only two should be correct. According to me, both are correct, because again and again I'm repeating this thing that provided the parliament makes a law on these duties, so they becomes enforceable. So in the constitution itself, the legislative process has been assigned to the parliament so that they can enforce these rules by making the parliamentary law. And they are correlative to legal duties. So yes, they are correlative to legal duties. So according to me, C will be the answer, both 1 and 2. And these are the questions of the center state relations, so we will take them in the later part. Thank you so much, and We keep share watching. the correct answer. Correct answer is D. Achal is saying correct is D. Both are wrong. Okay, so we'll be looking them in detail. Thank you so much, and keep watching Ansarkari. Stay tuned with us. थैंक यू।